Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. CMAT exam was conducted yesterday. In this video, we are going to do the detailed analysis of CMAT 2024 exam. We are going to compare slot 1 and slot 2 and section by section the level of difficulty of these two slots. Followed by that, we are going to understand the score versus percentile, what all parameters we have taken into consideration to calculate the score versus percentile. We are going to discuss that, and followed by that, actual score versus percentile कितना expected है, we are going to discuss that as well. This score versus percentile will help you understand कि आपको CMAT result के लिए wait करना है कि नहीं करना है, how much you are going to score, what colleges you can target, ये score versus percentile से पता चलेगा. Then the top colleges and their cutoff also we have to understand कि भाई कौन से colleges अभी भी open है. अभी बहुत सारे colleges का application over हो चुका है, but if you have applied to those colleges तो वो colleges का कितना cutoff है, we are going to understand that as well. So let us dive into this video. We are going to make sure that we cover each and every topic or each and every doubt you have. But if you feel कि हमसे कुछ miss हो चुका है, put it in the comment section. We'll try to cover it. ठीक है. Slot 1 and slot 2. अभी पिछले साल क्या हुआ था? पिछले साल slot 1 easy था and slot 2 moderate था. There was a huge difference in the two levels of the slots in last year CMAT 2023 exam. ये साल वैसा नहीं हुआ है. This year we can say that slot 1 was easy, slot 2 was easy to moderate. ठीक है. Definitely अगर दो पेपर सेट करेंगे तो दोनों सेम लेवल पे तो होंगे नहीं, थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा क्योंकि क्वेश्चंस चेंज हो गए तो कोई दो क्वेश्चन सेम लेवल पे ऐसा तो बोल ही नहीं सकते. बट अभी ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, ये अपने को समझना पड़ेगा. ठीक है. कौन सेक्शन वाज इजी इन स्लॉट 1, कौन सेक्शन वाज इजी टू मॉडरेट इन स्लॉट 2. इजी टू मॉडरेट मतलब देयर वर फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑन अलजेब्रा. अलजेब्रा अपने को उतना पसंद नहीं है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा छोड़ देते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे माइट हैव मिस्ड आउट ऑन 2 और 3 क्वेश्चंस इन स्लॉट 2. ठीक है. अलजेब्रा हैवी था इसलिए इजी टू मॉडरेट मैं कह रहा हूं. इफ यू हैव स्टडीड अलजेब्रा तो वो अलजेब्रा के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, बट अगर सीमेट के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अलजेब्रा नहीं पढ़ते हैं, दैट इज व्हाई वी आर पुटिंग इट इनटू दैट कैटेगरी ऑफ इजी टू मॉडरेट. मूविंग फॉरवर्ड, लॉजिकल रीजनिंग इजी था एंड यहाँ पे भी इजी था. पूरे पेपर में लॉजिकल रीजनिंग वाज द इजीएस्ट सेक्शन. आप स्लॉट 1 ले लो या स्लॉट 2 ले लो, लॉजिकल रीजनिंग में आपको 18-19 क्वेश्चन तो सही करने ही है. इट वाज दैट इजी. Moving forward to verbal ability, again easy to moderate. Few questions on vocabulary that were difficult to tackle. बाकी तो verbal ability section जैसा expected था वैसे ही आया. Again innovation and entrepreneurship, easy to moderate. As we always say, अगर आपको business terminologies पता है तो you will be able to solve these questions logically. ठीक है. पिछले साल तक बहुत ज्यादा हमको हमारे नॉलेज के ऊपर डिपेंड करना पड़ता था, स्पेशली इन इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप. बट वी हैव अंडरस्टूड दैट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, these questions can be solved by eliminating the options, and this logical method, if you have applied, then this section was definitely easy to moderate for you guys. ठीक है. The questions were simple. Most of the questions you could eliminate the options, एंड वैसे अगर आपने किया होगा तो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इजी था. ठीक है. ऑल दिस 3 सेक्शंस, इफ यू ऑल दिस 4 सेक्शंस, इफ यू कंपेयर इट विद प्रीवियस ईयर्स एग्जाम, सीमेट 2023 एग्जाम, इट वाज वेरी इजी, है ना. कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एग्जाम सीमेट 2024 में ये 4 सेक्शन बहुत ही आसान थे. गेम चेंजर था जनरल अवेयरनेस. There were around 80% questions on static GK. Static GK के 80% questions थे. Previous year तक static GK and current affairs around 50-50% आता था.
मतलब 10-10 क्वेश्चन आते थे, या फिर स्टैटिक के 11 एंड करंट अफेयर्स के 9 ऐसे आते थे. बट दिस ईयर व्हाट हैज हैपेंड, देयर हैव बीन अराउंड 15 to 16 क्वेश्चंस ऑन स्टैटिक जीके इन बोथ द स्लॉट्स, है ना. दोनों स्लॉट में 15-16 क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, पॉलिटी, साइंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे. सो डेफिनेटली थोड़ा सा टैकल करने के लिए डिफिकल्ट रहा होगा. सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन थोड़ा सा हमारा कट ऑफ नीचे आ सकता है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. बट बाकी के 4 सेक्शंस तो बहुत ही इजी थे. एज आई टोल्ड यू, जनरल अवेयरनेस गेम चेंजर सेक्शन था. अगर ओवरऑल कंपैरिजन करने जाए, स्लॉट 1 इजी था, स्लॉट 2 जो था वो इजी टू मॉडरेट था. स्लाइटली ऑन डिफिकल्ट साइड हमारा स्लॉट 2 था. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फैक्टर्स विच वी हैव कंसीडर्ड टू कैलकुलेट द स्कोर वर्सेस परसेंटेज. सबसे पहला फैक्टर है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम लास्ट ईयर. पिछले साल अराउंड 60 to 65,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था. इस साल अराउंड 70 to 75,000 कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया. देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 10,000 कैंडिडेट्स. ये ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं अवेलेबल, बट दिस इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन वेरियस टेलीग्राम चैनल्स एंड वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड ऑल्सो ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ग्रुप्स. सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन 10,000 ज्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे तो कट ऑफ एंड परसेंटाइल ऊपर जाएगा. लेवल ऑफ डिफिकल्टी एज कंपेयर टू लास्ट ईयर. पिछले साल के हिसाब से पेपर बहुत आसान था. 4 सेक्शन पिछले साल के हिसाब से बहुत आसान थे एंड एक सेक्शन जो था वो पिछले साल के हिसाब से डिफिकल्ट. ठीक है. दूसरा, स्लॉट 1 जो था वो स्लॉट 2 से डिफिकल्ट इजी था. स्लॉट 1 was easier as compared to slot 2. ठीक है, वो भी एक पैरामीटर रहेगा. एंड लास्ट, इंक्रीज नंबर ऑफ स्टैटिक जीके क्वेश्चंस. अगर जीके भी लास्ट ईयर जैसा ही आता था तो कट ऑफ बहुत हाई चले जाता था. बट अगर हम पिछले साल के कंपैरिजन में लेके आए तो जीके विल बी अ सेक्शन और जनरल अवेयरनेस विल बी और सेक्शन जहां पे आपको थोड़ा सा कट ऑफ नीचे आते हुए दिखेगा. ठीक है, डेफिनेटली देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ, तो आपका ओवरऑल स्कोर ही कंसीडर किया जाएगा. मूविंग फॉरवर्ड, सीमेट 2024 एंड सीमेट 2023 के हमारे पास कट ऑफ्स है. ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स है एंड दीज आर योर एक्चुअल कट ऑफ्स. ठीक है, क्योंकि ये तो डेटा अवेलेबल है. ठीक है, स्लॉट 1 स्लॉट 2 दो स्लॉट्स में एग्जाम हुआ था. पिछले साल अगर आप देखोगे स्लॉट 1 was easy and slot 2 was moderate and इन दोनों में इतना डिफरेंस था कि भाई जो टॉपर लोग थे उनमें भी 50 मार्क का डिफरेंस था. ठीक है, 50 मार्क में बहुत ज्यादा डिफरेंस था इन स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 लास्ट ईयर. ठीक है, सिमिलरली difference in for 99.5 percentile is also very huge. You can compare these values. काफी ज्यादा डिफरेंस है in their percentile and their score, है ना. ऑलमोस्ट 50 मार्क नीचे भी आए आपके स्लॉट 2 में तो भी आपका परसेंटाइल सेम आ रहा था. ठीक है, सो वैसा डिफरेंस ये साल आपको ऑब्जर्व करने नहीं मिलेगा. ठीक है, इफ यू सी स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 दोनों इजी या इजी टू मॉडरेट रेंज में ही थे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं. ठीक है, फिर भी ये यहाँ पे 15 मार्क का डिफरेंस फॉर 99.9 परसेंटाइल. तो अगर आपको जेबीआईएमएस जाना है तो जेबीआईएमएस जाने के लिए आपको 99.9 के ऊपर ही लाना पड़ेगा. एक्चुअल में लाना पड़ेगा 99.99 या 99.98. उतना अगर आपका 340 के ऊपर जा रहा है स्लॉट 1 में, 315 के ऊपर जा रहा है स्लॉट 2 में, देन यू स्टैंड अ वेरी गुड चांस टू गेट इनटू जेबीआईएमएस. ठीक है, 310 to 85 for 99.5 percentile. 99 percentile will be 300 and 217 slot 1 and slot 2 respectively. आप पूरा कंपेयर कर सकते हो टिल 80%. ठीक है, तो आपको अभी आइडिया तो होगा कि यार आपका पेपर कैसे गया था, है ना. आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे, वो मॉक्स से बेटर अगर आपका पेपर गया है तो आपका मॉक्स से ज्यादा स्कोर आने वाला है. सो ओवरऑल अगर आप देखोगे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपका स्कोर कितना आएगा. On the basis of that आपका कितना परसेंटाइल आएगा, this you can check from this chart or this table.
एक बार आपको परसेंटाइल पता चला, उसके बेसिस पे आपको आपका कॉलेज पता चल जाएगा। एक बार कॉलेज पता चल जाएगा, फिर आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि भाई ये कॉलेज जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, सो अगर आप ये गेज कर सकते हो कि आप कौन से कॉलेज में जाने वाले हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको रिजल्ट के लिए रुकना पड़ेगा। रिजल्ट कब आएगा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, रिजल्ट कब आएगा? मेरे हिसाब से 25 से 30 मई के बीच में रिजल्ट आना चाहिए। अभी क्यों आना चाहिए, लॉजिकली बताता हूं। 10-12 दिन में पहले भी रिजल्ट आ चुके हैं सीमेट एग्जाम के, सो वी आर एक्सपेक्टिंग ये 10-15 दिन में रिजल्ट आएगा। दूसरा, सीमेट एग्जाम विल बी इंक्लूडेड इन सीईटी का कैप राउंड प्रोसेस। सीईटी का रिजल्ट आ चुका है, तो सीईटी का कैप राउंड प्रोसेस मिड जून से तो डेफिनेटली स्टार्ट होगा। तो मिड जून के पहले सीमेट वालों को अपना रिजल्ट लगाना पड़ेगा, तो ही सीईटी के कैप राउंड में सीमेट इंक्लूड होगा, एंड वो डेफिनेटली होगा ही। तो डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आपको रिजल्ट मिल जाना चाहिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द टॉप कॉलेजेस। टॉप कॉलेजेस, ये जो कॉलेजेस है, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस इनका एप्लीकेशन क्लोज हो चुका है। तो अगर आप देखोगे ग्लिम चेन्नई आपका 99 परसेंटाइल पे जाएगा, अगर आप ग्लिम गुड़गांव देखोगे तो वो 90 परसेंटाइल के आसपास जाएगा आपका। ठीक है, ग्लिम इज ग्रेट लेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट चेन्नई, विच इज अ वेरी गुड कॉलेज। इट हैज इट्स डिफरेंट ब्रांच इन गुड़गांव, जिसका कट ऑफ अराउंड आपका 90 परसेंटाइल तक जाएगा। फिर आएगा आपका जिम गोवा, केजी सोमया, एनआईबीएम, ये आपके 98 परसेंटाइल तक चले जाएंगे। फॉलोड बाय दैट आपका आईएमटी नागपुर एंड हैदराबाद, एनआईए एंड आईएफएमआर चेन्नई आपके 90 परसेंटाइल तक जाएंगे। वेलिंगटन मुंबई बैंगलोर एंड बीमटेक नोएडा 85 परसेंटाइल, एंड फिर ये सारे कॉलेजेस आपके 80 परसेंटाइल वाले रहेंगे। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनएल डालमिया, एसआईपीएस, एक्सआईएमई बैंगलोर, आईपीए हैदराबाद, all these are decent colleges. So if you get into any of these colleges, well and good, आपका you can have a decent start to your career. But if you are not getting into any of these colleges, आपको भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करना है कि ये साल भी आपको एमबीए करना है। इफ यू डिसाइड कि आप नेक्स्ट ईयर एमबीए करने वाले हो, then it is a very big decision which you will have to take very quickly, है ना, क्योंकि बोलने को लगता है कि वो नेक्स्ट ईयर एमबीए है, बट उसका एग्जाम अभी नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होगा। अगर आप कैट एग्जाम टारगेट करते हो तो नवंबर में, स्नैप एग्जाम अगर आप टारगेट करते हो तो दिसंबर में, एनमेट भी अक्टूबर टू दिसंबर, जैट एग्जाम जनवरी। सो नवंबर दिसंबर कितना दूर है, 6.5-7 महीना दूर है। तो वो बोलने को सही लगता है कि भाई अगले साल दूंगा, इट इज नॉट अगले साल, इट इज हाफ एन ईयर अवे ओनली। तो वो डिसीजन आपको जल्दी लेना होगा। If you decide कि आपको नेक्स्ट ईयर एमबीए करना है, do connect with us on the numbers given in the description. We have various courses for the repeaters. We have various study plans for the repeaters. तो वो अगर आप हमको कांटेक्ट करोगे तो we can discuss about that. Numbers are provided in the description. Moving forward, if you feel that we might have missed out on any particular topic, तो वो आप हमको बताओ। इसके बाद वाला वीडियो जो हम बनाने वाले हैं, इन दैट वीडियो वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज कॉलेजेस जिनका एप्लीकेशन अभी ओपन होने वाला है। ठीक है, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दोज इंस्टीट्यूट्स जिनका अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, उनका कट ऑफ कितना है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू कवर दैट इन द अपकमिंग वीडियोस। Please like this video and subscribe to the channel. Thank you so much. Jai Hind.